أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری قوم کے پیارے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن اور علم پا کر میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک وحی کے ذریعہ سے مجھے یہ بتلایا تھا کہ ہماری قوم نے خاتم النبیین کے معنی نہ صرف غلط کر لیے ہیں بلکہ الٹ کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کے مخاطب کرنا قرآن مجید میں اس لیے تھا جس کے مفہوم وہ یہ دینا چاہتے تھے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں کی بھی تصدیق کرے گا، کنفرم کرے گا کہ یہ نبی ہے جن کا پہلے سے لوگوں کو علم نہیں، گویا کہ نبی جن کا علم ان کو ہے ان کے ناموں میں اور اضافہ کرے گا۔ بدقسمتی سے ہماری قوم نے اس کا مطلب الٹ سمجھ لیا، الٹ اس لیے کہ ہم نے اس کا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا کر لیا۔ نبیوں کو ختم کرنے والا سب کو پتہ تھا کہ ایک بری بات ہے، نبیوں کو ختم کرنا تو نبیوں کا قتل کرنے کے والی بات ہے نا، لیکن انہوں نے پھر اس کی ایک اور آگے تفہیم پیدا کر لی۔ ختم کرنا، نبیوں کا ختم کرنے کے لفظ کو درست کرنے کے لیے اپنے پاس سے یہ تفہیم پیدا کر لی کہ اس کا مطلب آخری نبی ہے۔ آخری جس کا لفظ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ خاتم کا معنی انہوں نے بنا دیا، جو کہ ہماری قوم کی بدبختی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس معنوں میں صرف یہ کہا تھا کہ اور انبیاء کی بھی تصدیق کر کے بتائے کہ یہ بھی نبی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل پہ آیات کھولیں اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ نبیوں کا ختم ہونا یا آخری نبی کا آنا یہ بات تو ممکن ہی نہیں قرآن مجید کی صداقت کے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس پہ آیت پہ تدبر کر لیں گے، خدا تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی یہ آیات میں آپ کے سامنے 4 یا 3 یاد دہانی کے لیے ہیں، اور میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو یہ بتلا دوں کہ خداوند تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنا، جب دیکھ لو کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی واقعی ہے تو پھر اس کو صرف نظر کرنا جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی خدا تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء۔ یہ کافی بڑی سزا ہے، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے، نہ کچھ آپ سے درمیان آسمان پہ جاتا ہے نہ کوئی واپس آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو سننے کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے ایک یہ بات بتلائی ہے، سورۃ نحل ہے آیت نمبر 104 میں کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، کہ خدا تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی، ان کو خدا تعالیٰ گائیڈنس، ہدایت نہیں دیتے، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ضرور رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات بھی سچ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور ان آیات کو جو میں آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں براہ مہربانی غور سے توجہ کریں، دیکھیں۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 ہے۔ خدا تعالیٰ کی پکا ایک اصول، پرنسپل انہوں نے بتا دیا
जिसके तर्जमे भी मैंने तो 3 यहाँ लगाए हैं, बाकी भी देखे हैं, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही इकरार करते हैं कि वाकई इस आयत में अल्लाह ताला ने यही कहा है कि तेरा रब बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले। आपका परवरदिगार बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं जब तक उनके मरकजी मुकाम में कोई रसूल न भेज दे। ये ज़रा ज़्यादा बेहतर था तर्जुमा। आयत के अल्फाज वैसे ये थे कि वमा काना रब्बुका मुहलिकुल कुरा हत्ता यब असाफी उम्मेहा रसूल। हमारा मकसद इस बात से है हत्ता यब असाफी उम्मेहा रसूलन, किसी भी बस्ती को, अल कुरा जो भी बस्तियां हैं जहां पर दुनिया में रहती हैं, और आपको पता है कि दुनिया में बेशुमार बस्तियां वो हैं जहां पर मुसलमान नहीं बसते, कोई और लोग बसते हैं, हिंदू बसते हैं, ईसाई बसते हैं, यहूदी बसते हैं, और ऐसे भी लोग बसते हैं जिनके मज़हब का हमें अभी शऊर ही नहीं है। खुदा ताला ने तमाम किस्म की बस्तियों के बारे में बगैर किसी शर्त के ये बात बतलाई है कि हर एक बस्ती को जिसको भी खुदा ताला हलाक करे उसके अंदर रसूल ज़रूर पहले मबूस होगा। ये इस आयत के अंदर एक पक्का हतमी फैसला है, आप इसको ज़हन में रखिए। ये उसकी तस्दीक के लिए एक और आयत सूरत अश-शुअरा की है, ये कह रही है व मा अहलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून। हमने कभी किसी बस्ती को हलाक नहीं किया बगैर इसके कि उसके लिए खबरदार करने वाले मौजूद थे। वैसे यहाँ मुनज़िरून का लफ्ज़, ये तवज्जो रखें, हमारे मेरे बुज़ुर्ग भाइयों ने जो तर्जमा किए हैं उसमें उन्होंने मुनज़िरून को नज़ीर के मानों में ले लिया है गलती से, या इसको वो वाज़े नहीं कर सके शायद। मुनज़िरून का मतलब वो लोग हैं जिनको वार्निंग मिल चुकी। यहाँ डराने वाले की बात नहीं, वो लोग जिनको के डराया जा चुका वो मुनज़िरून थे। खुदा ताला ने हर उस बस्ती में जिसको भी वो हलाक करें ये बतलाया है कि वहाँ के लोगों को वार्न किया जा चुका। वो लोग वहाँ वो होंगे, जिंदा मौजूद होंगे उस वक़्त जिस वक़्त खुदा ताला बस्ती को हलाक करेगा, जिनको वार्निंग मिल चुकी हो। मुनज़िरून का माना वो था जिनको वार्निंग मिल चुकी। वार्निंग देने वाले के लिए नज़ीर था। नज़ीर यहाँ नहीं लिखा अल्लाह ताला ने, मुनज़िरून लिखा था, इल्ला लहा मुनज़िरून। बहरहाल मफहूम उनका भी यही था कि कभी कोई बस्ती हमने हलाक नहीं की मगर उसके लिए डराने वाले भेजे जा चुके थे। मैं सिर्फ इसकी ये इस्लाह चाहता हूँ, बतलाना, मानना आपकी मर्जी है कि नहीं डराने वाले भेजे जा चुके, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा, अगरचे मफहूम ये बनता है। अल्लाह ताला ने ये कहा है किसी बस्ती को हलाक नहीं किया सवाए इसके, इल्ला सवाए इसके कि वहां के रहने वालों को वार्निंग मिल चुकी थी। खुदा ने यह कहा था कि वहां जो लोग रह रहे थे जिस वक्त हलाक किया उनको वार्निंग दी जा चुकी थी। ये अल्फाज थे। बहरहाल ये बात ज़हन में रखें कि बगैर अल्लाह ताला की तरफ से नज़ीर रसूल मबूस किए, इस आयत में भी ये है खुदा ताला की तरफ से वार्निंग देने वाला मबूस किए बगैर किसी बस्ती को अल्लाह ताला हलाक नहीं करता। और ये पिछली आयत ने उसकी खूब तस्दीक कर दी है कि जब तक रसूल मबूस ना हो अल्लाह ताला बस्तियों को हलाक नहीं करते। ये बात देख ली आपने। अब एक और ये भी याद दहानी के लिए है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 में, कई मज़ामीन में भी लिखा है इसको। इसमें खुदा ताला ने सबसे अहम बात हमारे मजमून से तल्लुक़ रखने वाली तो ये है व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजते जब तक हत्ता के नबअसा रसूला, जब तक कर ले अजाब नहीं भेजते। एक और बात जिसकी तरफ मैं इससे ज़रा हल्की तवज्जो याद दहानी के लिए रखना चाहता हूँ वो वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। याद रखें खुदा ताला का इंसाफ और अदल ये चाहता है कि किसी भी एक जान का बोझ किसी दूसरी जान पर न डाले। हमारे इस मजमून से मुतल्लिक बात यह हुई कि खुदा ताला
अगर किसी के दादे परदादे को नसीहत भेज दे या उसकी ज़िंदगी में रसूल आए मिल जाए और वो उसको ना माने, इस बात का बोझ उसके पोते परपोते या उसके 100 साल बाद किसी नस्ल पे नहीं आएगा। जिसको खुदा ताला जिस बात की सजा या अजाब देगा और उसी के ज़माने में उसी के दिनों में उसकी बात हो रही होगी, और रसूलों का इकरार भी और इनकार भी गुज़श्ता नस्लों की वजह से किसी कौम को नहीं माना जाएगा। सिर्फ जब अल्लाह ताला अजाब देगा, जिन लोगों के ज़माने में ज़िंदगी के दौर में देगा, उन लोगों की ज़िंदगी के दौरान ही रसूलों के मबूस होने की ये बात है। ये तवज्जो पे रखें। तर्जमे वैसे ये कहते हैं हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक लोगों को हक को बातिल का फ़र्क समझाने के लिए एक पैगाम्बर ना भेज दें। पैगाम्बर एक ही बात है, रसूल ही मतलब था उसका। खुदा ताला के अल्फाज में वैसे लफ्ज़ रसूलन, ये देख लें, ये बाकी 3 तर्जमे भी ऐसे हैं। इसके अलावा बाकी तर्जमे भी ये बात मानते हैं कि खुदावंद ताला अजाब देने वाले नहीं, वो कभी अजाब नहीं देंगे किसी भी किस्म का, ना कौम को, ना बस्ती को, ना टाउन को। यहाँ तो जो बात ऐसे लगती है कि इंडिविजुअल लोगों को भी खुदा ताला की तरफ से अजाब तब नाज़िल होगा अगर पहले रसूल वहाँ पर मबूस हो चुका होगा, क्योंकि ये हत्ता है ना। हत्ता का मतलब ये है कि ये काम जब तक नहीं हो जाता नबसा रसूला वाला, तब तक अल्लाह ताला अजाब को नहीं भेजते। ये बात है। ये असूल, ये 2 असूल, यानी हलाकत नहीं आ सकती जब तक रसूल मबूस ना हो, अजाब नहीं आ सकता जब तक रसूल मबूस ना हो। इस बात को ज़हन में रखें। तो आज का जो मज़मून आपके सामने है उस पर तवज्जो करते हैं। मज़मून असल में ये आयत आपके सामने पेश करने का था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ला यौमिल क़ियामत औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा काना ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा। मुतफ़िक़ा तौर पर इस आयत के सब तर्जमे जो इन 3 के अलावा भी हैं वो भी, और ये 3 आपके सामने हैं, ये भी देख लें कि खुदा ताला फरमा रहे हैं ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसे हम क़यामत के दिन से, यहाँ पर क़यामत यौमुल क़यामत है, क़यामत कह दिया उन्होंने, खैर है, जिसे हम क़यामत के दिन से पहले हलाक ना करें या उसे सख्त अजाब ना दें। और ये बात अल्लाह ताला की किताब में लिखी हुई है। ये आप देख रहे हैं तर्जमे, आप तवज्जो कर लें। मेरा मकसद अल्लाह ताला के इस पाक कलाम की अज़मत और वक़ार को ज़हन में रखने के लिए है कि मेरे भाई बहन, मेरी कौम के लोग इस बात को कभी ना भूलें कि खुदा ताला का ये कलाम गलतियों से पाक है। इसमें कतन कोई बात गलत नहीं, सहवन कुछ नहीं हुआ, कुछ भूल के नहीं लिखा अल्लाह ताला ने। ये जो लिखा है सचमुच खुदा ताला ने बिल्कुल यही कहा है कि क़यामत के दिन से पहले कोई भी ऐसी बस्ती नहीं रह जाएगी जिसको अल्लाह ताला या हलाक ना करे या सख्त अजाब ना दे। अभी इससे पहले हमने अल्लाह ताला के 2 असूल हलाकत के लिए भी और अजाब के लिए भी देख लिए हैं। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, खुदा ताला की वो आयतें भी ऐन उसी तरह सच हैं जिस तरह ये आयत सच है। इस पर गौर करने के बावजूद किस तरह मुमकिन है कि आपको ये समझ ना आए कि अगर ये बात सच है, दुनिया में इस वक्त हज़ार बस्तियां मौजूद हैं, हज़ार इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई रसूल आना ही नहीं, तो फिर खुदा ताला की ये आयत झूठ हो गई भाइयों। अल्लाह ताला इन बस्तियों को जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा की तादाद वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद वजूद में आई, जैसे वाह कैंट पाकिस्तान में
इस्लामाबाद और भी बेशुमार ऐसे शहर होंगे जो उस ज़माने में मौजूद ही नहीं थे जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ। पूरे का पूरा अमेरिका जो है, जिसके अंदर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बहुत सारे शहर हैं, वो वजूद ही नहीं रखते थे तब। वो बाद में शहर बने, वो बस्तियां बाद में आबाद हुई, बाद में उनमें हुआ। उन सब बस्तियों के लिए खुदा ताला की ये आयत सच है। आयत क्योंकि आज भी लागू है। तो जो भी कोई बस्ती दुनिया में इस वक्त मौजूद है, उनको खुदा ताला कह रहा है कि क़यामत के दिन से पहले पहले और आज के दिन के बाद, आज अगर बस्तियां कोई मौजूद हैं, उनको आज से लेकर क़यामत के दिन से पहले पहले इस अरसे के दौरान किसी वक्त खुदा ताला या हलाक करेगा या अजाब शदीद देगा। ये बात तो सही है ना। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के वास्ते जरा गौर करो कि क्या नौज बिल्ला अल्लाह ताला ये भूल गया ये बात कह के? उसे नहीं पता था कि मैं तो कह चुका हूं कि मैं रसूल मबूस किए करने से पहले किसी बस्ती को हलाक नहीं कर सकता। यहां अल्लाह ताला कह रहा है मैं हर एक बस्ती को जो दुनिया में है क़यामत से पहले पहले हलाक करूंगा। तो अगर क़यामत से पहले पहले हलाक करेगा तो हत्ता नब आसा रसूला वाली बात का क्या हुआ? जब तक रसूल मबूस ना करे बस्ती हलाक नहीं हो सकती, या फिर अल्लाह ताला की वो आयत गलत हो जाएगी। ऐसे ही एक और बात ये लिखी है, औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा, लेकिन खुदा ताला का ये कलाम पाक कह रहा है व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। फिर ये आयत गलत हो जाएगी अगर अजाब दे दिया और रसूल मबूस ना किया तो फिर ये गलत हो जाएगी। क्योंकि मेरे परवरदिगार की हर एक बात नपी तुली, बिल्कुल जांची पड़ताली और सच है। और बल्कि हमारा वो कादर खुदा है कि अगर उसने कुछ वैसे कह भी दिया तो जो उसने जिस तरह कह दिया ये कायनात मजबूर है कि उस तरह से ही वाकई हो जाए, और इस वास्ते हो जाए क्योंकि खुदा ताला ने कह दिया है। ये बात देख रहे हैं मेरे भाइयों कि दुनिया में इस वक्त जितनी बस्तियां हैं, वो बस्तियां हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो पिछले 100 साल 200 साल में बनी हैं। बहुत सारी आप जानते हैं ऐसी हैं। इस्लामाबाद तो मैंने एक मिसाल दी है, बेशुमार और हैं। अमेरिका पूरे का पूरा ही आबाद तब उसके बाद हुआ है। लेकिन बात यह है कि उनको अगर हलाक खुदा ताला करेंगे, हमारा मजमून ये है, हलाकत से पहले ये आयत दरमियान में आ जाएगी कि जब तक उनके बस्तियों के मरकजी हिस्से में रसूल मबूस ना करें। न्यूयॉर्क बजाते खुद पुराने ज़माने की 20 बस्तियों के बराबर है मेरा ख्याल है, और बहुत सारे शहर ऐसे हैं, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां अब कई बस्तियों की जितनी गुंजाइश और आबादी है, उनके किसी मरकजी हिस्से में, जिस तरह खुदा ताला ने बालाकोट को हलाक किया तो बालाकोट और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे जो गांव थे वो भी साथ हलाक हो गए थे ना। ऐसे खुदा ताला ये कह रहा है हत्ता यबअसा फी उम्मिहा रसूला, जब तक बालाकोट में रसूल नहीं अगर नाज़िल फरमाया, मबूस किया, तो बालाकोट और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों को हलाक मैं नहीं करूंगा। फिर मगर कर दिया 2005 में, और रसूल मबूस मैं कह रहा हूं कि खुदा ताला से इल्म पाकर के जरूर किया था। हम लोग अपने अकायद में अंधे होकर हमने उसको देखने और मानने से इनकार कर दिया, और फिर ये फर्ज कर लिया अपनी जहालत की वजह से कि नहीं, चूंकि हमने नहीं देखा लिहाजा आया ही नहीं होगा। नहीं, अगरचे हमने नहीं देखा, खुदा कह रहा है, देखो खुदा कह रहा है कि रसूल मबूस किए बगैर बस्तियों को हलाक नहीं करता होता। तो फिर जब बस्तियां हलाक हो रही थी बालाकोट की 2005 में, तो फिर जरूर उस वक्त वहां रसूल मबूस हो चुका होगा। ऐसे ही अब क़यामत तक खुदा तआला की इस आयत को देखें, क़यामत तक हर एक बस्ती ने हलाक होना है। तो हर एक बस्तियां जहां हलाक होंगी उनमें से 8-10 के मरकज में एक रसूल जरूर मबूस होगा। खुदा ताला की ये बात कह रही है, इस पे आप तवज्जो करें। खुदा ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।